بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ. Respected guests, teachers and all my dear friends, good morning to all of you. Today we are here to celebrate the 76th Republic Day of our India. This day is a very special for us because on 26 January 1950 our country got its constitution and became a republic. The constitution is a set of rules that guides us how to live together peacefully and fairly. It was written under the leadership of Dr. Baba Saheb Ambedkar. It gives us freedom like equality, justice and freedom. اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان چھوڑ کر اپنے ملک جانا پڑا. عزیزان ملت، یہ آزادی ہم ہندوستانیوں کو اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی. آزادی کی پہلی جنگ 1857 عیسوی کو بدر کی صورت میں ہوئی، جس میں ناکامی ہونے کی وجہ سے ہزاروں ہندوستانیوں کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا اور لاتعداد لوگوں کی جائیداد ضبط کر لی. زندگی کی کبھی شام نہ ہونے دیں گے، زندگی کی کبھی شام نہ ہونے دیں گے، شہیدوں کی قربانی بدنام نہ ہونے دیں گے. یہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں جو خلش ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام، في مثل هذا اليوم العظيم 29 يحتفل الشعب الهندي فيه يوم الجمهورية، وهو يوم تاريخي تجسد إرادة الشعب الهندي في تحقيق الاستقلال والسيادة على أرضه. ففي هذا اليوم من عام 1950 دخل الدستور الهندي حيز التنفيذ. اب میں ترانہ ہند پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حذیفہ احمد شیخ کو کہ وہ آئے اور ترانہ ہند پیش کرے. میرے پیارے وطن تو سلامت رہے، باغبان چمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے. میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشاں، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان. یادگار چمن تو سلامت رہے. والدہ کی طبیعت سخت خراب ہے اور میں نوکر بن کر رہ گیا ہوں. سارے کام مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں
उनको खाना खिलाना, उनके बिस्तर की सफाई करना, उनके कपड़ों को साफ करना, ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। फिर तो आप बहुत खुश नसीब है। खुश नसीब और मैं? वो कैसे मेरे भाई? ये तो बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत कमाने का मौका मिलता है। अच्छा, यानी मुझे सब मशक्कत उठाकर जन्नत मिलेगी? जी जरूर, इंशाअल्लाह। क्या आपने कर्न में रहने वाले ओवैस बिन आमिर का वाक़या नहीं सुना, जिन्हें आज हम ओवैस करनी के नाम से जानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं सुना। क्या आप मुझे सुनाएंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हज़रत ओवैस करनी अपनी वालिदा की खिदमत में मसरूफ़ रहते थे। इस वजह से वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ नहीं ला सके, तो चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए दुआ की और लोगों से कहा कि जब तुम्हारी इनसे मुलाकात हो तो अपने लिए मगफिरत की दुआ कराया करें। सुभान अल्लाह, वालिदैन की खिदमत का ये अजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिल सकी? जी बिल्कुल। क्या आपको वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखने का अजर मालूम है? जी नहीं, क्या मतलब वालिदैन को देखने का भी अजर है? जी बिल्कुल, और मैं जब आपको यह अजर बताऊं तो आप हैरान हो जाओगे। फिर तो आप जरूर बताएं। वालिदैन को एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखने पर मकबूल हज का सवाब है। सुभान अल्लाह, क्या ही अच्छी बात बताई है आपने मुझे। मैं तो अपनी वालिदा की खिदमत अपने लिए सज़ा समझ रहा था, लेकिन आपसे मिलकर मालूम हुआ ये तो जज़ा ही जज़ा है, जन्नत ही जन्नत है। जी बिल्कुल। हमें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में एक दुआ भी सिखाई है जो हम अपने वालिदैन के लिए मांगा करें। तो आप मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं वो हर नमाज के बाद मांगा करूं। जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। वो दुआ ये है, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब इंशाअल्लाह इस दुआ का एहतमाम ज़रूर करूंगा और वालिदैन की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे भाई, मुझे एक और बहुत प्यारी हदीस याद आ गई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो भी सुनाऊं। जी ज़रूर, क्यों नहीं। एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये बूढ़ा कौन है? तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, ये मेरे वालिद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके आगे मत जाना, इनसे पहले मजलिस में मत बैठना, इनका नाम लेकर इन्हें मत पुकारना और इनको गाली मत देना। सुभान अल्लाह, वालिदैन की खिदमत की इज्जत की इतनी ताकीद की गई है। जी बिल्कुल, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ामंदी वालिदैन की रज़ामंदी में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। मेरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, ये आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। मुझे इतने सारे फ़ज़ाइल मालूम नहीं थे। अल्लाह ताला मुझे और आपको वालिदैन की खिदमत करके उन्हें जन्नत में जाने का ज़रिया बनाए। आमीन। हज़रत मुफ्ती अय्यूब साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब, हाफिज़ अबू बकर साहब, ये तमाम अरकान शूरा इदारे के ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। हज़रत मुफ्ती साहब को गुलाय अक़ीदत दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। वहाँ नईम साहब, हज़रत मोहसिन साहब, जज़ाकल्लाह। हज़रत मुफ्ती साहब ने इस्तक़बाल कबूल फरमाए, शुक्रिया। जैसे हम अगर सिर्फ वन साइड बयान करते रहे ना तो आदमी सुनते सुनते थोड़ी देर उसको गुनूदगी आ जाती है, लेकिन अगर सवालात का अंदाज इख्तियार किया जाए, ये कुरान सिखा रहा है, कुरान ने रहबरी की। अल्लाह ताला फरमा रहे, कुल नबी जी आप कह दीजिए, पूछिए, आप बताओ भाई, हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो जानने वाले हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या कभी बराबर हो सकते हैं? जानने वाला और जिसको कुछ भी नहीं आता कभी बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। तो वो माँ बाप बड़े मुबारकबाद हैं जिन्होंने अपने खून के टुकड़ों को, अपने जिगर के टुकड़ों को दीन का और दुनिया का दोनों का इल्म हासिल करने के लिए कुर्बानी दी है, अपने घर से दूर रखकर यहाँ भेजा है। अल्लाह ताला उन तमाम पढ़ने वाले बच्चों को कबूल फरमाए और इस उम्मत का बेहतरीन रहनुमा बनाए। Good morning everyone. I am Hamzala
Today we are here to speak on the advantages and disadvantages of a mobile phone. This is Arman, this is Asif, and this is Ishan. They are favoring the mobile phone. And this is Abdullah, this is Ash, and this is Faiz. They are against on the use of mobile phone. So let's start. The main benefit of using the mobile phone is that they the made of communication easier. Sometimes mobile is a disturbing device that creates a distraction between your work. Students get easily distracted from their studies because of mobile. Children get addicted to mobile games that are played on mobile. It is the another major advantage of mobile phone. Mobile phone can be used to acquire knowledge or information. While listening to songs, watching movies, or calling for a long time with headphone can damage the listening potential of an individual. Mobile phone can be used for promoting a business. Mobile phones are best for businessmen to promote their business via online or offline sources. Now we have to understand the proper use of mobile phone. Please use mobile phone for a limited time and important work. Good morning everyone. My name is Nabil Aklim Khan. Today I am playing the role of Mahatma Gandhi. I would like to call Aman Jafar Sheikh to play the role of Maulana Abul Kalam Azad. Good morning everyone. My name is Aman Jafar Sheikh. I am playing a role of Maulana Abul Kalam Azad. Good morning everyone. My name is Sain Javed Sheikh. I am playing the role of Pandit Jawaharlal Nehru. Good morning everyone. My name is Faiz Sheikh. I am playing the role of Bhagat Singh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. میں مولانا حسین احمد مدنی کا کردار پیش کر رہا ہوں. مجھے جو شریع دیا جا رہا ہے وہ میرے اکیلے کا نہیں ہے. اس کا کچھ حصہ سر بی این راؤ کو جانا چاہیے جو کہ ہمارے اس سبھا کے سنویدھانک صلاحکار ہیں. این گوپال سوامی آینگر جنہوں نے جمہوری اداروں کے ڈھانچے پر کام کیا اور آئین کو متوازن بنانے میں مدد کی. اب میں دعوت دیتا ہوں ذیشان انصاری کو اللاتی کرشن سوامی ایّر کے کردار کے ساتھ. اللاتی کرشن سوامی ایّر جو آئینی معاملات میں گہرے علم کے حامل تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں کنہیا لال مانک لال منشی کو جنہوں نے ثقافتی اقدار اور بنیادی حقوق کی وضاحت میں کلیدی کردار ادا کیا. اب میں دعوت دیتا ہوں التمش کو محمد سعد اللہ کے کردار کے ساتھ. دستور کے مسودے کو اردو بولنے والے افراد تک پہنچانے کی کوششوں میں محمد سعد اللہ نے اہم کام کیا تھا. ٹی ٹی کرشنماچاری نے آئین میں مالیاتی اختیارات کی تقسیم کی اہمیت پر زور دیا. اب میں دعوت دیتا ہوں فیضان شیخ کو این مادھو راؤ کے کردار کے ساتھ. این مادھو راؤ کاشتکاروں کے حقوق کے لیے ہندوستانی آئین کے مسودہ کمیٹی میں اہم کردار ادا کرنے والے ایک ممتاز شخصیت تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں ابو بکر کو بی این راؤ کے کردار کے ساتھ. بی این راؤ کو آئین کے ابتدائی مسودے کی تیاری کے لیے 1946 میں آئین ساز اسمبلی کے مشیر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا. انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک میں آئینوں کا مطالعہ کیا اور ان سے سبق حاصل کیا. انہوں نے برطانیہ، امریکہ، آئرلینڈ اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے آئینوں کا جائزہ لیا تاکہ بھارت کے لیے ایک مناسب آئین ڈھانچہ تیار کر سکے. خواتین و حضرات، آج ہم ایک تاریخی لمحے کو یاد کرنے جا رہے ہیں. وہ لمحہ جب آزاد ہندوستان کے آئین کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا. The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India
into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. भारताचे संविधान, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकात सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी लोगों के साथ बिना किसी भेदभाव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह एक मौलिक अधिकार है। इसका मकसद लोगों के इच्छा के खिलाफ उनको मजबूरन करना है। भारत में धर्म की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार मानव अधिकारों में से एक है। यह अधिकार सभी संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह अधिकार व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का कानून है। अबद तो अजल का हसी है, चमकदार रुख सा रोशन जबी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रह बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फहर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सफीउल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नजीउल्लाह, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह। नंबर 1 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 2 हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3 हज़रत उस्मान बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लीजिए अपने बच्चे को, आज के बाद इसको मदरसे में भेजने की कोई जरूरत नहीं है। ये पूरे मदरसे में बच्चों से कहता फिरता है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। सारे उस्तादों से कहता फिरता है कि हमारे हाफिज जी हमको झूठी बातें सिखाते हैं। ये बच्चा है, मदरसे की बदनामी करा देगा। और जब इससे पूछते, मैं पूछता हूँ और उस्ताद पूछते हैं कि हमने ऐसी कौन सी झूठी बात सिखाई है, तो बताता भी नहीं है। रखिए अपने पास ऐसे बच्चे को। एक मिनट इधर सुनिए हाफिज जी, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। आपने जरूर उसे कोई झूठी बातें सिखाई होगी, इसीलिए वो मदरसे में कहता फिर रहा है कि मेरे हाफिज जी झूठी बातें सिखाते हैं। एक तो बच्चे को झूठी बातें सिखाते हैं, ऊपर से घर आके धमकी देते हैं कि आज के बाद भेजिएगा नहीं, मैं आपका मदरसा बंद करवा दूंगा। आप है किस होश में? एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना। बेटा रेहान, क्या तुम्हारे हाफिज जी ने तुम्हें झूठी बातें सिखाई? बताओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम। हम सब यही है, बताओ। हाँ बताओ, हम भी तो यही जानना चाहते हैं, बताओ। अब्बू, हमारे हाफिज जी हमको ये झूठी बातें सिखाते हैं कि हर मुसलमान मर्द औरत पर दिन भर में 5 नमाजें फ़र्ज है, जबकि अब्बू आप तो सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते। अगर अब्बू 5 नमाजें फ़र्ज होती तो आप सिर्फ जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते। हाफिज जी हमारे अब्बू बहुत अच्छे, जो सही है वही करते, कभी गलत चीज़ नहीं करते। आपकी तरह हमको झूठी बातें नहीं सिखाते। बेटा रेहान यहाँ हो, तुम्हारे हाफिज जी ने तुम्हें कोई झूठी बातें नहीं सिखाई, जो बात सच है तुम्हें वही बताई। झूठा तो मैं हूँ बेटा, हर मुसलमान मर्द औरत पर 5 ही नमाजें फ़र्ज है। वो तो मेरे जैसे कुछ नालायक है जो सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। मुझे माफ़ कीजिए हाफिज जी, मैंने आपसे बदतमीजी से बात की। बेटा रेहान, हाफिज जी से माफ़ी मांगो। हाफिज जी हमें माफ़ कर दीजिए। हाफिज जी हमें भी माफ कर दीजिए, हमने आपसे बदतमीजी से बात की। कोई बात नहीं, आइंदा आप भी ख्याल रखिए और आप पाँचों वक्त की नमाज की पाबंदी कीजिए, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह की बहुत बड़ी ताकीद आई है। जीने का सफर है और मैं नमदीदा जब भी अफसुरदा कदम लर्जीदा इन उलमा इकराम की तवज्जो मोहब्बत के साथ बच्चों के को जो है सर्टिफिकेट तो अभी नहीं दे रहे हैं, हम सनद अभी नहीं दे रहे हैं, दस्तारे फजीलत अभी नहीं कर रहे हैं, इनाम सिर्फ दिया जा रहा है। जो इनाम का इंतजाम पूरी कोशिश खिदमत आवाम ने की है, और वही खिदमत आवाम इनके उस्ताद जो दर्जे हिफ्ज़ के
पहले तालिब इल्म हाफिज शुएब मौलाना सलाहुद्दीन, हाफिज शुएब वल्द मौलाना सलाहुद्दीन, जरा तालियां देना, इनसे बड़ा इकराम किसका है भाई। और हमारी प्रिंसिपल मैम जो इस इदारे की प्रिंसिपल है सायरा मैम, उन्होंने अपने 2 बच्चों को हाफिज बनाया, जिसमें आज एक बच्चा हाफिज बन रहा है, हाफिज मुज्तबा। और इनके उस्ताद हैं मौलाना अबू जर साहब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं खिदमत आवाम ने जो खिदमत की है, इन बच्चों के लिए जो नजराना पेश किया है, 10,000 का चेक हाफिज मुज्तबा की खिदमत में पेश कर रहे हैं रिजवान भाई। 10,000 का चेक पेश कर रहे हैं, माशाअल्लाह। ये शफकत, सारे उलमा का हाथ शफकत का इन बच्चों के सर पर है, माशाअल्लाह। और इसके बाद हाफिज शुएब की खिदमत में उनके बड़े बाबा यहाँ मौलाना शरफुद्दीन मौजूद हैं। ये इनकी खिदमत में खिदमत आवाम की तरफ से 10,000 रुपए का चेक पेश किया जा रहा है। और क्योंकि मेहनत होती है, तवज्जो होती है, तो इनके उस्ताद के लिए जो है 10,000 रुपए और एक जोड़ी कपड़ा जो एक इनाम के तौर पर इनको नवाजा जा रहा है। हमारे भाई जावेद साहब खिदमत आवाम के एक मेंबर उनको इनाम से नवाजेंगे। सारे उलमा का दस्ते शफकत, प्यार, मोहब्बत भरा हाथ उनके साथ। जज़ाकल्लाहु अहसनल जज़ा। ये ट्रॉफी जो हमने रखे आप लोगों के सामने, ये स्पोर्ट डे हुआ था मदरसे का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे ही ग्राउंड में स्पोर्ट डे लिया था। इसका 1 घंटे का भाड़ा 2,000 रुपये। इसमें दिन भर हमने बच्चों को खिलाया अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहाँ पे कोई भी कमी ऐसी नहीं रखना चाहते जो हायर स्कूल में मिल रही है और हम यहाँ पे नहीं दे रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पोर्ट डे के इनामात वहाँ बढ़ चुके थे और अब्दुल गफ्फार साहब आए थे, उनके हाथ से बढ़ चुके थे। टाइम की कमी की वजह से हम फिर से नहीं बांट रहे, ये आप लोगों को दिखाने के लिए रखा गया। भरपूर तालियां बजाइए, क्योंकि अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पिरामिड परफॉर्मेंस। जान भारत पे देने को तैयार है, जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार है, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं, गोली सीने पे खाई डरे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं, वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं। सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से न दुश्मन के रुक पाएंगे, अपनी धरती की अजमत पे मर जाएंगे। वक्त पड़ने पे पीछे हटे हम नहीं, सरहदों पर खड़े तेरे अंसार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। जान भारत पे देने को तैयार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। रोकने से न
दुश्मन के रुक पाएंगे, रोकने से न दुश्मन के